खुर्शीदा परवीन और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। आज की खबरों की सुर्खियां दर्ज झैल हैं। दिल्ली में 70 रुकनी असेंबली के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सदर द्रौपदी मुर्मू, मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी, एस जयशंकर, दिल्ली के वजीर आला आतिशी, आप लीडर मनीष सिसोदिया, बीजेपी के बंसूरी सूरज और कांग्रेस की अलका लांबा इन बड़े नामों में शामिल हैं जिन्होंने दिन के अवाइल में वोट डाले। आसनसोल एमपी के बयान से मुश्किल में है तृणमूल। मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश किए गए अवाम दुश्मन मजदूर मुखालिफ बजट के खिलाफ कंस्तूरिया इलाके के मुख्तलिफ कॉलेजेस में आज एहतजाज किया गया। मुश्तइल गांव वालों ने घेराव किया और बोलेरो ब्लॉक लैंड यूनियन ऑफिस जबरदस्त मुजाहरा किया और तालाब को बचाने का मुतालबा किया। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact please contact 977403017593 1908857 to 7585971093। रावेंद्र भवन में फिल्म फेस्टिवल का इफ्तिताह और ये 7 फरवरी तक जारी रहेगा। 3 अफराद को चंचल रत्न से नवाजा गया, जैसे नवीन चंद्र सिंह सीनियर टीचर, दीपा बरतू घोष आर्टिस्ट और खून अतिया करने वाले पेरधर पाइन। आइए सुनते हैं फॉर्म के सदर श्री जितेंद्र तिवारी क्या कहते हैं। দুটো সংস্থা ছিল, তারা কিন্তু আসানসোলে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করতো। সিনে ক্লাব অফ আসানসোল আর একটা কিছু নাম ছিল, আমি জাস্ট রিকলেক্ট করতে পারছি না। হ্যাঁ, ফিল্ম স্টাডি তারা করতেন। ইসিএল এর কিছু অফিসাররা ছিলেন, আরও অনেকে ছিলেন, গুণী ব্যক্তিরা ছিলেন, তারা কিন্তু সবাই মিলে এটা করতেন। কোনো কারণে, যে কোনো কারণ হোক, সেটা কন্টিনিউ। ঠিক যে আসানসোলের মানুষ চাইছিলেন যে আবার এটা স্টার্ট হোক। 2014 থেকে 2024 আসানসোলের মানুষ তারকাদেরকে পার্লামেন্টে পাঠিয়েছে, কিন্তু মানুষের এই সেন্টিমেন্ট কোথাও না কোথাও আমরা বুঝতে পারিনি। যেখানে মানুষ তারকাদেরকে এত ভালোবাসে যে তাদের নিজের সমাজের সমস্যা সমাধানের জন্য পার্লামেন্টে পাঠিয়ে দেয়, সেই আসানসোলে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল বন্ধ হয়ে যাবে, এটা মানুষের কাছে সত্যি খুবই পেইনফুল ছিল। এবং আমরা ভালো লাগছে যে কালচারাল অ্যান্ড লিটারেরি ফোরাম অফ বেঙ্গলের নেতৃত্বে আবার এটা আমরা স্টার্ট করলাম। কারা আবার স্টার্ট করলো সেটা বড় কথা নয়, কাদের জন্য স্টার্ট হলো সেটা বড় কথা। ইট ইজ ফর ইউ আসানসোলিয়ান্স, আপনাদের জন্য স্টার্ট হলো। এবং আমরা চাইব যে আগামী দিনে সবাইকে নিয়ে আমাদের যে এই কর্মকাণ্ড সেটা যেন চলতে থাকে। কালচারাল লিটারেরি ফোরাম অফ বেঙ্গল লাস্ট 3 বছর ধরে আমরা বিভিন্ন কালচারাল অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে যুক্ত। আমরা আমাদের মূল লক্ষ্যই হলো যে সারা বাংলায় এমন একটা প্ল্যাটফর্ম মানুষের কাছে তুলে ধরা, যেখানে মানুষ, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ, বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, বিভিন্ন জাতির মানুষ, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা মানুষ, তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পলিটিক্যাল আইডিওলজিতে বিশ্বাস করা মানুষ, যেটা খুব টাফ তাদেরকে একসঙ্গে নিয়ে আসা, তারা এক মঞ্চে আসুক। এবং
প্রথমে যখন এই কাজ আমরা স্টার্ট করতে যাই খুব কি বলবো বাধার সম্মুখীন হয়েছিলাম, যেহেতু আমাদের একটা পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশন আছে। অনেকের মনে এটা ছিল যে ওরা যেহেতু এটা করছে, আমরা গেলে হয়তো ওরা যে দলের সঙ্গে যুক্ত আমরাও সেই দলের সদস্য হয়ে যাব, সে কারণে প্রথমে অনেকে হেজিটেট করছিলেন। কিন্তু ফ্রম ভেরি ফার্স্ট ডে আমরা বলেছিলাম যে একবার আসুন, ওই হিন্দিতে একটা বিজ্ঞাপন চলে টিভিতে, পহলে ইস্তেমাল করো ফির বিশ্বাস করো। তো আসুন একবার দেখুন, এবং তারপর যে ধারণা তৈরি করতে হবে সে ধারণা তৈরি করুন। কিন্তু আগে থেকেই একটা বাড়িতে বসে একটা ধারণা তৈরি করে নেওয়া যে একটা সংস্থা একটা অনুষ্ঠান করছে, এর পেছনে অন্য কোনো অভিসন্ধি থাকতে পারে, এটা করা মানে হলো যে একটা সাধু উদ্যোগকে সমর্থন না করা। আমরা চাই যে আপনারা সবাই এর সঙ্গে যুক্ত হন, এবং আমাদের যে লক্ষ্য যে আমাদের গুরুদেব যে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic wall, into that heaven of land my father let my country awake. তো আমরা সেটা পারবো না। এমন পৃথিবী হয়তো আমরা তৈরি করতে পারবো না যেখানে বাউন্ডারি থাকবে না, এমন দেশও আমরা তৈরি করতে পারবো না হয়তো যেখানে বাউন্ডারি থাকবে না, এমন সমাজও আমরা তৈরি করতে পারবো না যেখানে বাউন্ডারি থাকবে না। কিন্তু একটা মঞ্চ, একটা কালচারাল মঞ্চ তো আমরা তৈরি করতেই পারি যেখানে কোনো বাউন্ডারি থাকবে না, এবং সে কাজই আমরা করে চলেছি। আমাদের পুরো ফোকাস যে এই কালচারাল একটা এমন আমরা মঞ্চ তৈরি করব সারা বাংলা জুড়ে যেখানে কোনো বাউন্ডারি থাকবে না, যেখানে সমস্ত অন্যান্য সব বিষয়ে মানুষ অ্যাডজাস্ট করে নেয়, কিন্তু পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশনের ডিফারেন্ট পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশনের ব্যক্তিরা, ভিন্ন দর্শনে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা এক মঞ্চে আসতে খুব হেজিটেট করেন। হয়তো গেলেই আমার হয়তো জাত চলে গেল, গেলেই হয়তো আমি ওর দলের হয়ে গেলাম, উনি আমার দলের হয়ে গেলেন, এইরকম একটা ভাবনা। তো আমরা এই বাউন্ডারিটাও ভাঙবো, এবং এই বাউন্ডারি ভাঙার জন্যই আমরা এই মঞ্চের গঠন করেছি। এবং আমাদের আপনি যে ফিল্মগুলো আপনারা দেখবেন, যে ফিল্মগুলো আমরা সিলেক্ট করেছি, এটা দেখবেন বিভিন্ন দর্শনে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা আছেন। একজন তো লেফট ফ্রন্টে ক্যান্ডিডেট ছিলেন ব্যারাকপুরে, ছিলেন তো উনি লেফট ফ্রন্টে ক্যান্ডিডেট ছিলেন, ওনাকে আমরা তো ওনার ফিল্ম দেখেছি, ওনাকে আমরা আসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি। হ্যাঁ, দেবদূত বাবু 6 তারিখে আসবেন উনি। আমাদের 3 মিনিটে যে একটা 3 বছর আমাদের কর্মকাণ্ড যেটা দেখবেন, সেটা দেখবেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী লোকেরা আছেন, দেখবেন একটা पटना पुरी पटना हफ्तावार एक्सप्रेस खुसूसी ट्रेन की दौड़। आसनसोल ईस्ट सेंट्रल रेलवे अथॉरिटी ने 0322903230 पटना पुरी पटना हफ्तावार स्पेशल को पटना 6 फरवरी 2025 से 27 मार्च 2025 हर जुमेरात और 2020 जुमेरात को चलाने का फैसला किया है। 28 मार्च 2025 को मुसाफिरों के इजाफी रश को साफ करने के लिए मौजूदा स्टॉपेज औकात रास्ते देखभाल और सर्विस के दिनों के साथ हर जुमा को सफ़र करें। ट्रेन में जनरल, सेकंड क्लास और एयर कंडीशन कोचेज होंगे। सालतोट ग्राम पंचायत के परहिला हिटला में वाक़ श्री साई हनुमान मंदिर की 13वीं सालाना रस्म बुध 5 फरवरी को मुनक़द की गई। वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद की इत्तला के मुताबिक इस मौका पर एक पालकी का जुलूस निकाला गया, जिसमें 100 से ज़्यादा मर्द व ख़वातीन अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। मालूमात के मुताबिक 13वीं सालाना त्यौहार के मौका पर निकाली गई पालकी का जुलूस परबिलिया अंडंगा बाज़ार का कांटा न्यू कॉलोनी से होते हुए हाट तल्ला से होता हुआ इंटोर पेट्रोल पंप तक वापस आया, जहां इबादत की जाती है। इसके बाद नारा नारायण शिव का एहतमाम किया गया। इस दौरान इस मंदिर के पुजारी रघुनंदन पांडे ने बताया कि 5 फरवरी 2012 इसके क़याम के बाद से मंदिर में सुबह व शाम पूजा और प्रसाद तकसीम किए जा रहे हैं। अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में जमा होते हैं और प्रसाद वसूल करते हैं। इस मौका पर यक्स सिंह, मदन प्रसाद,
चंचल गुराई, राजेश शाह, पवन ठाकुर, सिकंदर सिंह, नीलम पांडे, सुनीता राज पंडित, पिंकी साव, अनिला देवी और प्रीति पांडे और दीगर मौजूद थे। दिल्ली में 70 रुकनी असेंबली के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सदर द्रौपदी मुर्मू, मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी, एस जयशंकर, दिल्ली के वजीर आला आतिशी, आप लीडर मनीष सिसोदिया, बीजेपी के बंसूरी सूरज और कांग्रेस की अलका लांबा इन बड़े नामों में शामिल हैं जिन्होंने दिन के अवाइल में वोट डाले। संतराज प्रसाद की रिपोर्ट के मुताबिक असेंबली इलेक्शन 2025 ये फैसला करेगा कि अगले 5 सालों के लिए यूनियन टेरिटरी की क़यादत कौन करेगा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से 1:33 पोलिंग स्टेशनों पर शुरू हुई है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के दरमियान रुखी जंग 8 फरवरी तक असेंबली इंतखाबात के नतायज के साथ ख़त्म होगी। दूसरी तरफ दिल्ली असेंबली इंतखाबात 2025 में एक तनाज़ा देखने में आया कि क्योंकि बीजेपी ने एएपी पर बुरक़ों में ख़वातीन के जाली वोटिंग की सहूलत, पार्टी कारकुनों ने दावा किया कि मुतअद्दिद पोलिंग बूथों पर जाली वोट डाले गए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। दरअसल पोलिंग हकाम ने यकीन दहाई कराई है कि किसी भी बेज़ाब्ती को रोकने के लिए ज़रूरी तस्दीकी इक़दामात किए जा रहे हैं। हुकाम ने अभी तक इन इल्ज़ामात का जवाब नहीं दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और 13.766 पोलिंग स्टेशनों पर शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। तकरीबन 1.56 करोड़ अहले राय हिंदुस्तान इस मुकाबले में दिल्ली के सियासी मुस्तक़बिल का फैसला करने के लिए तैयार है, जो शहर की हुक्मरानी को नई शक्ल दे सकता है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 19.95% वोटरों ने सुबह 11 बजे तक अपना हक राय दही इस्तेमाल किया था। शुमाली मशरिकी में सबसे पहले ज़्यादा टर्न आउट 24.87% रिकॉर्ड किया गया। बाबरपुर 31.30% के साथ हलकों में सबसे आगे है। इसके बरअक्स वस्ती दिल्ली में सबसे कम टर्न आउट 16.46% रहा। करोल बाग में सिर्फ 11% वोटरों की शिरकत रिकॉर्ड की गई है। एसीएल झांझरा में एमआईसी में काम करते हुए मजदूर की मौत। कन्हैया घोष नामी एक फर्द मंगल को एसीएल झांझरा इलाके के एमआईसी में काम करते हुए फौत हो गया। वाक़े के ताल्लुक से बताया जाता है कि कन्हैया घोष की मौत इस वक्त हुई जब उसका हाथ बेल्ट के ड्रम से टकराया और उसका पूरा जिस्म ड्रम से टकरा गया। मजदूर की मौत की खबर सुनते ही तमाम मजदूर तंजीमों के रहनुमाओं और कारकुनों ने एमआईसी जंग पर मुजाहरा किया। मजदूर रहनुमाओं का इल्ज़ाम है कि तकरीबन 1 साल के दौरान काम के हादसात में 3 से 5 अफराद हलाक हुए और इसके बावजूद इंतज़ामिया हिफाजत के मामले में कोई तवज्जो नहीं दे रही है। कोलवरी ऑडिटोरियम एमएलए मजदूर लीडरों और झांझरा इंतज़ामिया के साथ मरने वाले मजदूर को मुआवजा देने के सिलसिले में होने वाली बातचीत में तमाम मुआवजा अदा करने पर इत्तेफाक किया गया, जिसमें तकरीबन 1000 रुपये की रकम भी शामिल है। मुतवफ़्फ़ा की बीवी को हर माह 65,000 रुपये और इस वक्त तक दिए जाएंगे जब तक कि मुतवफ़्फ़ा मजदूर के ज़ेर कफ़ालत बेटे की उम्र 18 साल ना हो जाए। आसनसोल सिलपांचाल के एक मुमताज़ सामाजिक कारकुन कृष्ण प्रसाद ने प्रयागराज महाकुंभ में मुक़द्दस गुस्ल के हवाले से एक तारीखी ऐलान किया।
बिनू श्रीवास्तव की रिपोर्टों के मुताबिक मगरबी बर्दवान ज़िला के अक़ीदतमंद भी प्रयागराज में मुक़द्दस गुस्ल कर सकते हैं। इसका इंतज़ाम करने के लिए उन्होंने कहा कि मगरबी बर्दवान ज़िला के कुल 19 असेंबली हलकों में 2-2 बसें खोली जाएंगी। उन्होंने कहा कि तमाम अक़ीदतमंदों को पूरी हिफाजत में मगरबी बर्दवान ज़िला से प्रयागराज ले जाया जाएगा। वहाँ नहाने का इंतज़ाम किया जाएगा। इसके बाद इन सभी को बाहिफाजत मगरबी बर्दवान वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला, मरकज़ी वज़ीर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और आसनसोल रेलवे डिवीज़न के DRM को ख़त लिखेंगे। कृष्ण प्रसाद ने कहा कि इस यात्रा में सिर्फ 21 साल से 55 साल के लोग ही हिस्सा ले सकते हैं। इससे कबल 20, 21 और 22 फरवरी को मुख्तलिफ मजहबी रसूमात का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये यात्रा 22 फरवरी को सपहर आसनसोल के मशहूर घाघर बुढ़ी मंदिर के अहाते से शुरू होगी। आसनसोल में 3 रोज़ा मजहबी रसूमात का इनेकाद किया जाएगा जो 20 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेगा। मौका पर पुजारियों के ज़रिया यज्ञ का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ये नंबर 9933016505 और 2057499330। ये दोनों व्हाट्सएप नंबर हैं और कोई भी इस पर राब्ता करके महाकुंभ में जा सकता है। शंकर आचार्य एवी मक्तेश्वर आनंद को कत्ल करने की धमकी। मावनी अमावस्या पर भगदड़ के बाद से शंकर आचार्य एवं कतेश्वर आनंद यूपी हुकूमत को लगातार निशाना बना रहा है। उनका इल्ज़ाम है कि इंतज़ामिया हकीकत को छुपा रही है। योगी हुकूमत के इंतज़ामात पर मुसलसल सवाल उठाने के बाद अब उन्होंने बताया है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली हैं। शंकर आचार्य ने यह भी कहा कि वो पहले ही अपनी श्रद्धा कर चुके हैं, इसलिए उन्हें मरने का कोई खौफ नहीं है। शंकर आचार्य ने कहा कि अगर कोई हकीकत है वो आकर मुझे बता सकते हैं, हम उसे मान लेंगे, लेकिन अगर आप उसे सफ़ेद कर देंगे तो ये गलत है। अगर आप लाशों को अफवाह कहते हैं। आसनसोल MP के बयान से मुश्किल में है तिरमुल। वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक तिरमुल लीडर ममता बनर्जी कहती हैं कि हर रियासत की अपनी खासियत होती है। कुछ गोश्त खाते हैं, कुछ सब्जी खोर होते हैं। ये हिंदुस्तान है, लेकिन उनकी पार्टी अरकान असम्बली इसके बिल्कुल बरअक्स सोचते हैं। आसनसोल के स्टार MP शत्रुघ्न सिन्हा चाहते हैं कि पूरे मुल्क में नॉन वेजिटेरियन खाने पर पाबंदी लगाई जाए। शत्रुघ्न सिन्हा ने यकसा सिविल कोड की। तिरमुल MP ने रुकावटों और तनाज़ात के बावजूद यकसा सिविल कोड को नाफिज करने के लिए उत्तराखंड हुकूमत की तारीफ की। मुल्क में सिर्फ गाय का गोश्त ही नहीं, तमाम नॉन वेजिटेरियन खानों पर पाबंदी लगाई जाएगी। हुकूमत ने कई मकामात पर गाय के गोश्त की फ़रोख्त रोक दी है, लेकिन कई जगहों पर अब भी गाय का गोश्त फ़रोख्त हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। तिरमुल MP ने सवाल जो कानून शुमाली हिंद के लिए है, वही कानून शुमाली मशरिकी में भी लागू होना चाहिए। अगर मुल्क एक ही है तो वसूल भी एक जैसे होने चाहिए। नए कानून के तहत एक जोड़े को तकरीबन शादी की तरह रहने के लिए रजिस्ट्रेशन से गुजरना पड़ेगा। अगर आप क़वायद पर अमल नहीं करते हैं या रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई गलत मालूमात देते हैं तो आप जेल जा सकते हैं। जोड़े को 3 माह कैद, 25,000 रुपये जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। तनाज़ा के दरमियान शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मुल्क में मुसावी शहरी कानून को लागू किया जाएगा। पूरा मुल्क उसे कबूल करना है, लेकिन कानून में बहुत मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश किए गए अवाम दुश्मन मजदूर मुखालिफ बजट के खिलाफ कंस्तूरिया इलाके के मुख्तलिफ कॉलेजेस में आज एहतजाज किया गया। जनरल सेक्रेटरी वंश गोपाल चौधरी, कंस्तूरिया इलाका के कन्वीज कॉमरेड कलीमुद्दीन अंसारी, बैंक मंडल शंभू चौधरी, सुब्रता सिद्धांत, उज्जवल मुखर्जी, असगर अली, हिरन मंडल, सानी मंडल और दीगर कारकुनान मौजूद थे।
इनकी मुलाकातें हुई। सरकार जो केंद्रीय बजट पेश करती है वो केंद्रीय बजट पेश हुआ है और केंद्रीय बजट पेश होने के बाद पूरे मीडिया में छाया हुआ है कि मिडिल क्लास को, जो चाकरीजीवी लोग हैं, जो सर्विस सेवा करते हैं, उनको टैक्स में भारी छूट दी गई। हम लोग ये भी सुने हैं कि 12 लाख तक हम लोगों को टैक्स में छूट दिया गया। जो समय सीमा है आय का वो 12 लाख रुपया कर दिया गया। हम लोग ये सुने हैं और मीडिया इसको काफ़ी प्रचार कर रही है कि मिडिल क्लास को, जो चाकरीजीवी लोग हैं, उनको काफ़ी रियायत दिया गया है। लेकिन दूसरा पहलू हम लोग को देखने की ज़रूरत है। हम लोग जानते हैं जब कोई पूजा आता है तो पूजा के समय में जो पाठा बलि होता है, पाठा को बलि का पहले काफ़ी खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया जाता है। तब इसी तरह ये बजट पेश किया गया। नौकरियों को खत्म करने वाली ये बजट है, इसलिए इस बजट को विरोधिता करते हैं। हम लोग जानते हैं ये बजट हमारा देश के आवाम के लिए विरोध है, ये विरोधाभास बजट है, इसलिए हम इस बजट को विरोध करते हैं। साथ ही इस बजट में जो प्रोविजन रखा गया है उसके खिलाफ हम लोग 20 अप्रैल को ब्रिगेड जाएंगे। ब्रिगेड का डाक आज 4 संगठन द्वारा ब्रिगेड का आवाज दिया गया है। उस 4 संगठन में कौन कौन है? CI2 है, खेतिहर मजदूर संगठन है, किसान संगठन है और बस्ती संगठन है। ये 4 संगठन मिलकर के ब्रिगेड का आवाज दिया है। 20 अप्रैल को ब्रिगेड में एक बड़ा सभा होगा। इस सभा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है, CI2 उसमें इसलिए शामिल है कि देश की तमाम जो श्रमिक हैं और जो जहां श्रमिक काम करते हैं, उन तमाम श्रमिक के काम के जगह को प्राइवेट करने का जो प्रोविजन रखा गया, उसके लिए ये ब्रिगेड है। ये तमाम किसानों को जो प्रताड़ित इस बजट के माध्यम से किया गया है, ये किसान सभा इसलिए उस ब्रिगेड का हिस्सेदारी है। वो ब्रिगेड का आवाज दिया है कि हम जो किसान हैं, हम जो अन्नदाता हैं, अन्न हम सब देश के तमाम आवाम तक पहुंचाते हैं, उनको ये सरकार प्रताड़ित कर रहा है। इसीलिए बजट के विरोध में 20 अप्रैल को ब्रिगेड किसान सभा की तरफ से रखा गया है। जो छोटे छोटे कृषक हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं, उस किसानों को भी इस बजट में MSP का प्रावधान नहीं रखा गया। इसीलिए वो किसान सभा की ओर से 20 अप्रैल को ब्रिगेड समावेश का आवाज दिया गया है। बस्ती उन्नयन संगठन, जो गरीब लोग बस्ती में रहते हैं, झुग्गी झुपड़ी में रहते हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं है। उनको आज प्राइस राइज, जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उस महंगाई को किस तरह कम किया जाए, इस बजट में उसका खाका कहीं नहीं देखा गया। इसलिए जो बस्ती में रहने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग, दुर्गापुर स्टेशन को नए सिरे से बनाया जाएगा। 20 करोड़ रुपए से बनेगा गुड शेड। आसनसोल DRM चेतन सिंह ने पीर को कहा कि आसनसोल स्टेशन पर मुसाफिरों की सहूलियात में इजाफा होगा। दुर्गापुर स्टेशन को नए सिरे से जिंदा किया जाएगा और 20 करोड़ रुपए से सामान का शीट बनाया जाएगा। नई मेमो ट्रेन जल्द ही अंडाल और सेंथिया के दरमियान चलाने की मल्टी ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रानीगंज स्टेशन से गुजरेगा, इसलिए वहां भी बहुत काम होगा। अराजी से तजारात हटाने में रेलवे को दरपेश रुकावट के मामले पर उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती कुछ नहीं किया जाएगा, जो भी तनाज़ा है उसे बातचीत से हल किया जाएगा। DRM ने कहा कि दुर्गापुर रेलवे स्टेशन एक बहुत अहम रेलवे स्टेशन है। यहाँ एक गुजर शीट भी है जहाँ से सामान की आमदोरफ्त होती है। दुर्गापुर स्टेशन से मज़ीद ट्रेनें चलाने की भी मांग है, लेकिन जगह की कमी की वजह से ये मुमकिन नहीं है। वहाँ 20 करोड़ रुपए से एक नया सामान शीट बनाया जाएगा। मुश्तइल गांव वालों ने घेराव किया और बोलेरो ब्लॉक लैंड यूनियन ऑफिस जबरदस्त मुजाहरा किया और तालाब को बचाने का मुतालबा किया।
गांव वालों का कहना है कि इस तालाब का पानी गर्मियों में उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करता है। अगर ये पुल बना तो उन्हें पानी की संगीन बहरान का सामना करना पड़ेगा। एक मुजाहिरीन ने कहा कि ये तालाब हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है। अगर ये पुल बना तो पानी के लिए भटकना पड़ेगा। इंतज़ामिया को फौरी तौर पर उसे रोकना चाहिए। गाँव वालों का इल्ज़ाम है कि कुछ बाअसर लोग तालाब पर गैर कानूनी तौर पर पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़मीन को तिजारती तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। मुजाहिरीन ने कहा कि इंतज़ामिया से तालाब को बचाने और ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। अब है ये लम्हा SMS का। वेयर देयर इज़ लव देयर इज़ लाइफ। जहाँ मोहब्बत है वहीं ज़िंदगी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपसे हमारी गुजारिश है कि